پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے مبارک، جلالی اور افضل ترین نام میں آپ تمام سامعین جو ہماری کرائسٹ ویژن یورپ کی اسکائپ آئی ڈی پر موجود ہیں اور آپ کے ذریعہ سے کی جانے والی پرستش اور دعاؤں کے وسیلہ سے برکت پائی، اور آپ سب جو ہمارے ساتھ فیس بک کے متعدد پیجز پر ہیں، یوٹیوب چینل اور واٹس ایپ پر کلام خدا میرے ساتھ مل کر سیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ اور آج پھر اس خوبصورت سما کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یعنی یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ اور اس کے 20 باب کا آپ کے ساتھ مل کر آغاز کروں گا۔ اس سے پیشتر ہم نے 19 باب تک بہت ہی قلیل اور بہت ہی مختصر انداز سے گزرے کم از کم 5 سالوں میں مطالعہ کیا ہے، اور اب ہم اس 20ویں باب کا آج آغاز کریں گے۔ امید واسق ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر اس بائبل سٹڈی میں روحانی طور پر تیار ہوں گے اور ذہن بھی کھلے ہوں گے، کان بھی اور دل بھی، تاکہ ہم اس کلام کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنائے۔ مکاشفہ 20 باب کا جب میں آغاز کرتا ہوں تو یہاں سے ایک نئے پہلو سے بھید سے پردہ کشائی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت کچھ سیکھا 19 باب میں اور اس سے پہلے کے ابواب میں، لیکن اب جب ہم 20ویں باب کا آغاز کرتے ہیں تو بہت سی اور گہری اور عمیق باتیں اور مختلف واقعات اس باب میں میرے لیے اور آپ کے لیے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں نہ میں اس 20 باب کی پہلی 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کر دوں، کیونکہ ان 2 آیات پر ہی میں آپ کے ساتھ مل کر بات کروں گا۔ کتاب مقدس میں مقدس یوحنا محبت کے رسول روح القدس کی تحریک سے پتمس کے جزیرہ میں جیسے خدا کے روح نے ان کو ہدایت کی لکھتے ہیں، اور وہ یوں فرماتے ہیں، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گھڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ آیت 2، اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ ان 2 آیات کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو ہم مقدس یوحنا کو ایک ایسا منظر دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ ایک فرشتہ دیکھا، کون سا فرشتہ معلوم نہیں، لیکن ایک فرشتہ تھا اور وہ آسمان سے اتر رہا تھا، اترتے دیکھا۔
बाय द वे, आसमान से उतरने की टर्म या इस्तिलाह मुकाशफा की किताब में किसी फरिश्ते के उतरने के ताल्लुक से मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुई है। यह कोई पहली बार नहीं है। आप हमारे साथ इन बाइबल स्टडीज में शरीक थे और हैं, और आपको मालूम भी है। और फिर लिखा है, चूंकि आसमान से उतरा तो उसके हाथ में दो चीजें थी। कौन से हाथ में क्या था, या एक ही हाथ में थी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन पॉसिबल है कि उसके एक हाथ में अथाह गड़े की कुंजी हो और दूसरे हाथ में एक बड़ी जंजीर या चैन, जिसको हम कहते हैं। एक फरिश्ता आसमान से उतरता था और उसके हाथ में अथाह गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। दूसरी बात, उसने, यानी किसने? उस फरिश्ता ने जिसके हाथ में कुंजी भी थी, यानी चाबी की, और उसके हाथ में एक बड़ी जंजीर भी थी। उसने कुछ किया किसी के साथ। कौन था? लिखा है वो अजदहा था, पुराना सांप था, शैतान था, और इसको हम अबलीस भी कहते हैं। तो इसके साथ क्या किया? उसको पकड़ा गया और फिर उसको 1000 वर्ष के लिए बांधा। मैंने पहले तो बाइबल से आयत के लिखे गए अल्फाज आपकी खिदमत में तलावत किए हैं। माबाद मैंने अपने लफ्जों में समझने और समझाने के लिए कि अगर हमारे पास इस वक्त खुदा का कलाम तहरीरी तौर पर ना भी हो, कहीं ऐसी जगह पर हूं और आप इस बाइबल स्टडी को सुन रहे हों, तो डबल डोज मिले, हमें पता हो कि इन दो आयात में क्या है। जिन मुख्तलिफ हालात और वाकयात की बाबत हम इस बाब में देखते हैं, इस पूरे बाब में बहुत कुछ है। हम उन पर देखेंगे बशर्ते के खुदावंद की मर्जी हुई। इसमें शैतान का बांधा जाना, मसीह और मसीह के साथ मुकद्दस लोगों की 1000 साला बादशाही, पहली क़यामत, सफेद तख्त की अदालत, शैतान का थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाना, शैतान का अंजाम, और वो दुआ जो हम हर इबादत के इख्तिताम पर करते हैं। और उस दुआ में एक जुमला कहते हैं, तेरी बादशाही आए। अब उस दुआ की तकमील होते हुए हम इस बाब में देखेंगे। ये वो मुख्तलिफ वाकयात हैं जो इस बाब में हम देखते हैं। और यह भी याद रहे, 19 बाब और उससे 1-2 अबवाब पहले, बल्कि काफी पहले से, हम एक मुसीबत के जमाने का जिक्र पढ़ते रहे, जो कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद जमीन पर वो लोग जो सर्द मेहर थे और मसीह को अपना दिल नहीं दिया, उनके ऊपर आने वाली इस 7 साला मुसीबत के टाइम पीरियड के बारे में, जो मुसीबत का जमाना है, हम सीख रहे थे। और अब उस मुसीबत के जमाने का खात्मा, बिल आखिर उसका खात्मा
हो चुका है 19 के एंड पर, और 20 के आगाज में एक नया आगाज है, एक नया बाब है, एक नया सफा है, एक नया चैप्टर खुलता है, एक नया आगाज है। और हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि अब गुनाह से मुकम्मल तौर पर मखलसी हो चुकी है। इस बाब के आगाज में मौत से मुकम्मल तौर पर आजादी मिल चुकी है। मुसीबत के जमाने का इख्तिताम हो चुका है। कहरे इलाही यानी गज़बे इलाही अब खत्म हो चुका है। जंग यानी हर मजदून की जंग जो इसराइल और गैर कौमों के बीच में हो रही थी, जिसमें बहुत बड़ी लहू की नदियां बहीं कई फुट तक, और तमाम अफवाज उस सफेद घोड़सवार के हुक्म से, यानी उसके मुंह से जो तेज दहारी तलवार निकली, यानी हुक्म कलाम किया, उस हुक्म से वो तमाम अफवाज सफाए हस्ती से मिट गईं। और यूं हवा के तमाम परिंदे आकर उस ज़ियाफत में शरीक हुए, यानी उनकी मुर्दा लाशों को खाने लगे। यूं उनका सफाया कर दिया, और यह खुदा की तरफ से उन परिंदों को दावत मिली थी। अब वो जंगे हर मजदून अब तमाम हो चुकी है। शैतान का बिल आखिर अब खात्मा हो रहा है, और फिर 1000 साल खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही का आगाज हो रहा है इस बाब में। इसलिए इसके आगाज में इन बातों का जहन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आइंदा बातें हम तभी बेहतर तौर पर समझ पाएंगे अगर हमारा आगाज अच्छा होगा तो। और यह भी हम याद रखें कि अब जब एक नए आगाज की बात करते हैं तो यह भी जानने की जरूरत है कि इस 1000 साला बादशाही को 1000 years reign of our Lord Jesus Christ, दर हकीकत इसको मिलीनियम भी कहते हैं। मिली, कई लोग ये कहते हैं कि ये दरअसल लातिन जबान का लफ्ज है, और अनम के माना साल के है, मिली के मतलब 1000 के है, 1000 साल। यूं 1000 साल खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही होगी। 1000 साल के बारे में कई बाइबल मुकद्दस के मुफस्सिरीन और उलमा मुख्तलिफ ख्याल करते हैं। मेरा अपना कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि जब बड़े बड़े आलम मुख्तलिफ ख्याल और मुख्तलिफ कयास करते हैं, तो मैं तो बाइबल मुकद्दस का एक अदना सा तालिब इल्म हूं, लेकिन उनका ख्याल मैं जरूर बताऊंगा। और वो ये कहते हैं, जब हम 1000 साला बादशाही के तसव्वुर की बात करते हैं, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तो वो इसको यूं देखते हैं कि खुदा के हुजूर एक दिन 1000 बरस के बराबर है। और यूं 365 दिन के एतबार से एक साल, और यूं वो 1000 साल को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो हिसाब निकलता है वो ये कहते हैं कि इतने 1000 साल, लाखों के हिसाब से।
खुदाबंद यीशु मसीह ये बादशाही करेंगे। वो वक्त भी आएगा कि आपकी बादशाही का कोई इख्तिताम नहीं होगा, लेकिन यह क्लियर बात है कि मसीह खुदाबंद एक तवील अरसे तक इस जमीन पर मौजूदा यरूशलेम के ऊपर अपनी बादशाही को कायम फरमाएंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी कहता चलूं कि जैसा इस आयत में, आयत 1 में लिखा है फरिश्ता के बारे में, और मैं पहले भी कह चुका हूं यह मिकाईल है या जिब्राइल है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि यहां उस फरिश्ता का नाम लिखा हुआ नहीं है और ना ही खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह होते तो उनका नाम क्लियरली लिखा होता कि फिर मसीह ऐसा करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं फरिश्ते खुदा की खिदमत गुजार रूह है और खुदा ने किसी एक फरिश्ता को यह जिम्मेदारी दी जिसका यहां इस पहली और दूसरी आयत में जिक्र है। तो एक तो बात यह है कि यह बेनाम लेकिन है कोई फरिश्ता, और उस फरिश्ता को मुकद्दस यूहन्ना आकाश से इस फर्श पर, अर्श से फर्श पर उतरते हुए मुकद्दस यूहन्ना देख रहे हैं। वो कैसे उतर रहा था यहां पर नहीं लिखा, और हमें इतनी पेचीदगियों में जाने की जरूरत भी नहीं। और फिर लिखा है उस फरिश्ता के हाथ में अथाह घड़े की कुंजी थी। अथाह घड़ा, अबियास, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और आलम लोग ये बात कहते हैं कि ये जमीन के नीचे एक ऐसा घड़ा है जो जिसकी तय नहीं है, बॉटमलेस पिट, और वहां पर अबलीस की तमाम बद अरवा जो उसकी पैरवी में रही, जब इस जमाने को पूछेंगे तो वो वहां पर मुकय्यद होंगी, और फिर अबलीस को भी वहां पर मुकय्यद कर दिया जाएगा। करते हैं बात थोड़ी देर में इस पर। और फिर लिखा है उसके पास अथाह घड़े की कुंजी थी। कुंजी इख्तियार को बयान करती है, अथॉरिटी को बयान करती है। जिसके पास कुंजी हो उसके पास इख्तियार है। मैं यहां पर एक हाई स्कूल है और वहां पर एक छोटा सा जॉब करता हूं, और वो एक मुतरजम के तौर पर है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चाबी है जो स्कूल वालों, जितने भी टीचर्स हैं उन सब के पास है, कि जितने भी क्लासरूम्स हैं उन क्लासरूम्स को मेरे पास ये इख्तियार है कि किसी भी क्लासरूम को मैं खोलकर वहां बैठ सकता हूं और स्टूडेंट को किसी खास क्लासरूम में बैठाकर उसके साथ हेल्प कर सकता हूं, उसकी मदद कर सकता हूं, उसकी काउंसलिंग कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास क्लासरूम्स का अथॉरिटीज की तरफ से इख्तियार है कि मैं जिस रूम को खोल सकता हूं। और इसी तरह शायद आप में से भी कईयों के पास मुख्तलिफ तरह के इख्तियारात होंगे, और बायन इसी तरह मैं यूं कहूंगा कि वो फरिश्ता साहिब अख्तियार है। उसके पास खुदा की तरफ से दिया गया अख्तियार है। उसके पास अथाह घड़े की चाबी है, कुंजी है, और फिर उसके पास
फिर लिखा है एक बड़ी जंजीर भी थी। जब मैं इस अथाह गढ़े के बाबत बात करता हूं तो मैं कहीं भूल ना जाऊं, क्योंकि मकाशफा 9 बाब की पहली आयत में लिखा है, और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह गढ़े की कुंजी दी गई। ये ऑलरेडी ये बात 9 बाब में हम स्टडी कर चुके हैं। एक फरिश्ता जिसके पास ये इख्तियार है कि उसको ये अथाह गढ़े की कुंजी दी गई है। सेकंडली, इस बड़ी जंजीर की जब हम बात करते हैं कि उसके हाथ में एक जंजीर है, चैन, शायद पंजाबी च संगल कहते हैं, वो उसके हाथ में थी, और उसका मकसद क्या था कि वो शैतान को बांधे। अब शैतान को क्यों बांधा जा रहा है जी? एक तो बात यह है, पहले यही शैतान, यही इब्लीस उस हैवान में समा कर काम करता था। और अगर आपको याद हो तो हमने 19 के इख्तिताम पर देखा था कि वो हैवान और झूठा नबी, मुखालिफ मसीह और वो कसबी पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए। क्यों उनको हर मजूदून की जंग में मारा नहीं गया? इसलिए कि उनके लिए स्पेशल टोकन है सजा का, और हमने उस पर बात की भी थी और मजीद करेंगे, और वो है गंधक और आग से जलने वाली वो झील जो मुसलसल जलती रहती है और जहां कीड़ा नहीं मरता, मुसलसल मुसलसल जलते रहना। और चूंकि अब वो पकड़े गए थे, जिस सबब से अब शैतान उन में से निकल आया, ये इब्लीस, ये पुराना सांप निकल आया, जिस सबब से अब वो इस खास फरिश्ता के जरिया से इस बड़ी जंजीर से बांधा जाता है। और बाय द वे, खुदा को किसी जंजीर की जरूरत नहीं कि इब्लीस को बांधे। ये टर्म तो दर हकीकत मेरे और आपके समझने के लिए भी है, और वैसे भी इब्लीस शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, इसलिए उसके लिए यह टर्म इस्तेमाल हुई कि एक बड़ी जंजीर, और इसका मतलब वाकई लिटरली जंजीर है जिसके साथ उसको पकड़ा गया। दौराने मुतालिया मेरे जहन में आ रहा था कि रसूलों के आमाल, यानी वो आमाल जो रसूलों के वसीला से पाक रूह ने किए, पाक रूह के काम, उसमें हमें मुतअद्दिद बार नजर आता है कि खुदा के लोगों को इसी इब्लीस ने पॉलिटिकल और रिलीजियस लोगों को इस्तेमाल करते हुए उनको जंजीरों से बांधा। लेकिन यही जंजीरें, यही बेड़ियां खुल गई। खा वो पतरस था, खा वो सिलास था, खा वो पौलुस था, खा कोई ही क्यों नहीं था, आप जानते हैं। इवन मसीह की कब्र पर जब पत्थर
लड़काया गया। उसके बाद उसको शाही स्टैंप लगाई गई और मुफस्सिरीन ये बताते हैं कि उस पत्थर को बाकायदा जंजीर के साथ बांधा जाता और क्रॉस सूरत में, और उसके ऊपर शाही स्टैंप की जाती थी कि कोई इसको तोड़ ना सके और ले जा ना सके। वो शख्स जो गरासीनियों के इलाका में एक कब्रिस्तान में बदरू गिरफ्तार नंगा घूमा करता था, आप जानते हैं कि उसके अजीज उसको जंजीरों से बांधे रखते थे। और मैं यह भी बताना चाह रहा हूं कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी जबान पर आज भी जंजीर बंधी हुई है, जिप और ताले लगे हुए हैं कि वो खुदाबंद यीशु मसीह की खुशखबरी के कलाम को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जिनके हाथों को रूहानी तौर पर हथकड़ियां लगी हुई हैं कि जहां पर रास्ती का और नेकी का काम करना चाहिए, दूसरों की हेल्प के लिए करना चाहिए, वहां वो नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों के पांव रूहानी तौर पर जंजीरों से जकड़े हुए और काठ में ठूके हुए हैं कि जिन बेसहारा, गरीब और नादार लोगों के पास, इवन गैर कौमों के वो इलाके जहां खुशखबरी का कलाम नहीं पहुंचा, वहां पर जाने के लिए उनके पांव में बेड़ियां हैं और उनकी जबान पर जिप, ताकि वो जा ना पाए। और ये हमारे इस दुश्मन यानी ये इस अबलीस का ही काम है। और ये कहते हुए खुदा का रूह आज मुझसे कह रहा है, और पॉसिबली आपसे भी मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कि कहीं कोई नादीदनी जंजीर, कोई नादीदनी जिप मेरे होंठों पर, मेरी जबान पर, मेरे मुंह पर, मेरे हाथों में और मेरे पांव पर तो नहीं पड़ी हुई। यीशु मसीह आए हमें आजाद करने के लिए। यसाया 61 में बड़े खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि मेरे आने का मकसद क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। और अब वही अबलीस जिसने कोशिश की हर जमाने में मुकद्दसों को बांध कर रखने की, आज की दुनिया में मैं बताऊं, हां, चंद एक ऐसे मुकद्दसीन हैं जिनकी बाबत कह सकते हैं कि वो वाकई मसीह की इंजील की खातिर बंधे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे हैं जो हम अपने आप को ईमानदार और मोमन कहते भी हैं, लेकिन सुस्ती और काहली और लापरवाही और बुज़दिली के जंजीर हमारे पांव में और हमारे हाथों में, हमारे दिल पर, हमारे जहन पर, हमारी जबान पर लगे हुए हैं, इवन ताला लगा हुआ है। और खुदावन आज हमसे ये चाहते हैं कि तू कहां है। ये जरा सोचने का मकाम है। आयत नंबर 2, पहली आयत में तो फरिश्ता को देखा, उसके हाथ में अथागड़े की कुंजी और जंजीर थी, लेकिन काय के लिए, किस मकसद के लिए। आयत नंबर 2, उसने उस अयदहा, पैदाइश 3 बाब में आप अयदहा सांप की बाबत जानते हैं
کہ یہ کون ہے. اور سانپ ہر زمانے میں اس کی امیج بھی ہمیشہ ابلیس کو پیش کرتی ہے, دشمن کو پیش کرتی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا, اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لیتے ہیں تو خدا را سانپ اور اس کے علاوہ یہ گنز وغیرہ اور پسٹل وغیرہ بھلے وہ پانی والے ہی کیوں نہ ہوں, پلیز نہ خریدیں. آلریڈی دنیا میں بہت دہشت گرد ہیں, ہم مزید پیدا نہیں کرنا چاہتے. اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز خریدیے جو ہمارے بچوں کی تعلیم اور ذہنی ترقی اور فلاح اور بہبود کا سبب ٹھہرے. آپ کوئی پزل گیم اے بی سی الف بے پے والی لے کر ان کو دے سکتے ہیں. آپ ان کو کوئی تعلیمی گیم لے کر دے سکتے ہیں جس میں وہ پڑھیں اور آگے بڑھیں. خیر, یہ ہمارا شخصی فیصلہ ہے, لیکن لکھا ہے اس نے اس اژدہا یعنی فرشتہ نے اس اژدہا کو, جو کون ہے, وہی پرانا سانپ. کون سا والا؟ ایدن والا. جو کون ہے؟ ابلیس. اور کیا ہے؟ شیطان. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ان آیات میں. اس کو پکڑ کر یعنی گرفتار کیا اور پھر 1000 برس کے لیے اس کو باندھا. 1000 برس کے لیے اس کو باندھا اور اتھا گڑھے میں اس کو ڈالا, کیونکہ وہاں ہی اس کے پیروکار اور اس کی بد روحیں ہوں گی اور ہیں بھی. اور ہم انہی حقائق کو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس زنجیر کے ساتھ اس کا باندھا جانا مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. مکمل طور پر راج, امن, سکون, خوشی, اور وہ بات پوری ہوگی کہ سانپ بھی اور بچہ بھی باہم مل کر کھیلیں گے, اور شیر بھی اور بکری بھی ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے. اس کا مطلب روحانی طور پر یہ ہے کہ سب لوگ بڑے چھوٹے سب برابر ہوں گے, اور دشمنی کا کانٹا ہمیشہ کے لیے اب نکال دیا جائے گا. اور ہم کیا سیکھتے ہیں ابھی نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ جب ہم 3 آیت میں جائیں گے اگلے ہفتے اگر خداوند نے چاہا, تو پھر اس 3 آیت میں سے ہم بہت کچھ اور سیکھیں گے جو ان گزری 2 آیات کے سمجھنے میں بھی اور اس کے بعد کی آیات کے سمجھنے میں بھی ہمارے لیے مددگار ہوں گی. لیکن یہاں پر آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک اہم ترین سبق ہے. ایمانداروں, آئیں, آپ نہیں بلکہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. آئیں ہم مل کر روح میں, ابھی ہو تو ابھی یا بعد میں, جہاں آپ کو آزادی ہو, پوشیدگی میں, دعا میں, اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے روح میں خدا کے حضور اپنے آپ کی بابت سوچیں کہ کہیں میں نادیدنی زنجیروں سے بندھا ہوا یا بندھی ہوئی تو نہیں ہوں. خدا کے روح کے تابع ہوں, یا میری زبان بھی آزاد, میرے خیال بھی آزاد, اور میری سوچیں بھی اور میرے ہاتھ بھی. اور جب خدا کے روح کے تابع نہیں ہوں گے تو لازماً کسی اور کی زنجیر میں بندھے ہوئے ہوں گے, اور ہمارا ریموٹ کنٹرول پھر اسی کے ہاتھ میں ہوگا.
और फिर जो वो चाहेगा हमसे करवाएगा। इसलिए आइए हम अपने आप पर सोचें, और अगर अपनी जात में दाल में काला काला नजर आए, अपनी आंख में शहतीर नजर आए, अगर अपने आप की बाबत वो निविष्टाए दीवार नजर आए कि तुम तोले गए और कम निकले, तो केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए हम तौबा करके खुदावंद की तरफ रुजू लाएं, क्योंकि वो हमें मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी और सुस्ती और काहिली से पाक करने और जंजीरों से आजाद करने पर कादिर है। छोटी सी दुआ आपके साथ मिलकर करना चाहूंगा। ऐ आसमानी बाप, शुक्र करते हैं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया है। फजल बख्शिए कि इस कलाम के मुताबिक हम अपने आप को मापें और तोलें और परखें। मेरी ईमानदारी का मैयार क्या है? वो जो मुझ में है, क्या मैं उसकी गवाही दूसरे लोगों को देता हूं, देती हूं कि नहीं? वो लोग जो दुख और तकलीफ और कर्ब के आलम में हैं, क्या मैं उनके आंसुओं के पूछने में अपना हाथ बढ़ाता हूं कि नहीं? वो लोग जो गुनाह की दलदल में धंसते चले जा रहे, मेरे कदम उनकी तरफ बढ़ते हैं कि नहीं कि उनको वहां से निकालने के लिए वसीला बन सकूं। ऐ खुदावन, हमें फजल बख्शिए कि ये कलाम हमारी सोचों को बदल दे। हम नेरे वाह वाह और हालेलुया कहने वाले ना हों, क्योंकि ये रियाकारी होगी। खुदावन, मुमकिन कीजिए हमारी सोचें बदल जाए, हमारे दिल और ख्याल बदल जाए, और आपकी मर्जी को हम अपने जीवन में तरजीह देने वाले हों। और इस वक्त जितने भी मेरे अजीज भाई और बहनें ऑनलाइन हैं, खा किसी ही मीडिया के जरिए, उन सब के लिए बरकत और सलामती चाहता हूं। उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में अगर किसी भी तरह का इस वक्त बोझ है, खुदावन उस बोझ को आप ले लीजिए। अपने लोगों को सुख और चैन और राहत और आराम दीजिए। हर बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। मोजज़े पर मोजज़ा आपके लोगों की जिंदगी में हो। खानदान बिगड़ने और बिखरने के बजाय आबाद हो जाए। लानतें बरकत में बदल जाए, और खुदावन सुस्ती और काहली अब दिलेरी में बदल जाए। बेरोजगार लोगों के लिए आसमान के खजाने खुल जाए और आप उनकी मदद कीजिए, और अपने लोगों की हर जायज जरूरत जो आपकी मर्जी के मुताबिक है आप पूरा कीजिए। इस खाकसार की आज शब की दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। खुदावन ने चाहा तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।